So basically we are starting with a new chapter, right? That is measures of central tendency. और उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं what is mean, right? Mean, median, mode में से we are looking forward for mean. Okay, so जो भी whatever measures of central tendencies are there, they are usually called averages because they all are calculated in a way that they come to a number. वो नंबर के हेल्प से ही कैलकुलेट होते हैं एंड दे कम टू अ नंबर ओनली विच गिव्स अस आइडिया रिगार्डिंग व्हाट इज द एवरेज, राइट? ये तीनों जो फॉर्म्स है उसमें वो यूजुअली कहीं ना कहीं हमको एवरेज ही देते हैं, राइट? दे गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ दिस वैल्यूज आर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरह से ये वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं. दैट आइडिया इज obtained by measures of central tendency, right? See, there are 5 measures for measuring central tendency. Here we are having division of means: arithmetic mean, median, definitely, mode, and there are some kinds of mean जैसे कि geometric mean, harmonic mean and weighted mean, right? As I told you that measures of central tendency usually is divided into 3, that is mean, right? Sorry, mean, median and mode, right? What is mean? The average of the data. जैसे कि यश ने हमको बताया that total number divided by total number of units. ठीक है, whatever is the total, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से. जैसे अगर हमको आप लोगों के एवरेज परसेंटेज निकालने हैं तो आप लोगों के टोटल परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, right? Same way, what is median? The middle value of the data. The center, middle most value of the data is called mean. जैसे मैंने आपको example दिया 3, 4, 5. Right? So which one is in middle? 4. So 4 will be our median. We have various formulas for this median, mean and mode to calculate that we will see step by step as we move forward. Right? Next is mode. Mode means what? Most commonly repeated data, most commonly occurring value. The number, the data which is repeated at the most, that is known as mode. Right? Please take your video. Okay, so we are going to start firstly with mean. I would like Yashvi to read this out. Yes, ma'am. Mean, average. Mean locate the center of the distribution, also known as arithmetic mean. Most common measure. The mean is simply the sum of the value divided by the total number of items in the set affected by extreme values. Yes. Got it, beta? Mean is the most common measure used to calculate. Right? Mean जो है that is also known as arithmetic mean, and mean में जैसे कि मैंने आपको बताया sum of the values is divided by total number of items. Right? See, here you can see the formula also. यहाँ पे आपको formula भी present की है, right? See, here's x, that is mean, right? That is denoted with mean. X, that is equal to sigma, right? ये E को sigma बोलते हैं. Sigma xi, where I is equal to 1. इसी तरह से नंबर्स चेंज होते रहते हैं. जो भी आपका सिग्मा मीन्स टोटल ऑफ xi कॉलम, राइट? इसमें थोड़े कॉलम्स होते हैं. इफ यू कैन ओपन योर पेज नंबर 189, पेज नंबर 189, वहां पे आपको एक डेटा प्रेजेंट किया गया है. 15, 20, 30, 22 इस तरह से एक डेटा प्रेजेंट किया है.
वो डेटा जो प्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, दैट इज योर xi कॉलम. सो उसका जो भी टोटल आएगा दैट विल बी योर सिग्मा xi, राइट, डिवाइडेड बाय n. हाउ मच नंबर्स आर देयर? जैसे यहाँ पे टोटल 10 नंबर्स हैं, राइट, सो डिवाइडेड बाय 10. फाइन. इसको और भी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज x mean is equal to whatever numbers you have. how much numbers? x1, x2, x3, x4. इस तरह से xn means infinity. जब तक आपका x चलता जा रहा है, that divided by total number of units, that is known as mean. Right? Is it clear for all? Yes, you can give your thumbs up if it is. Okay, yes, good, fine. ठीक है. Now, there are some merits and demerits of mean, and there are some methods also for arithmetic mean. सबसे पहले हम देखेंगे merits. ठीक है. So, Yash will read and Mehak will explain. It Okay? is easy to understand and easy to calculate. Yes. Come on, Mehak. Elaborate this. मैम ये समझने में और कैलकुलेट करने में इजी होता है. Okay. You are not explaining to ma'am. आप आपके friends को explain कर रहे हो. ठीक है. So you can be free. Yes, yes. Next. It is based upon all the observations. ये सारे ऑब्जर्वेशंस के बेस पे होता है. Okay. It is familiar to common man and rigidly defined. Rigidly. Rigidly defined. Yes. Yes, Mehak. आपने कॉल सपोर्ट नहीं देता उसको लेकर. Yes, Mehak. कोई ऐसा आईडी कहीं एक्सेल में कुछ तो मेंशन किया होगा. मैम ये वाला समझ नहीं आया. देखना मेरे को बनाना ऐसा हो तो ऐसा नंबर. See बेटा, इसमें क्या लिखा है? It is familiar to common men and rigidly defined. मतलब ये common man, एक नॉर्मल इंसान भी मीन को कैलकुलेट कर सकता है, मीन को समझ सकता है, मीन को यूज कर सकता है. राइट? क्लियर? It is familiar to common man and it is defined very properly, nicely, that everyone is able to use that method to calculate, to find an average. Right? Yes, Yash, next point. It is capable of further mathematical treatment. Yes, whatever mathematical. ये- Yes, yes, may continue, sorry. ये दूसरे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूजफुल हो सकता है, कैपेबल है. जैसे हमको किसी भी चीज के लिए, आज अगर हम पॉपुलेशन सर्वे करते हैं, आज अगर हम कुछ भी एज अ पॉपुलेशन सैंपल कुछ भी हम लोग करते हैं, तो उसके लिए हर बार ऐसा जरूरी नहीं है दैट इंडिविजुअल एंड सिंगल डेटा इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड इट इज ऑलवेज ऑप्टेन. उसके लिए काफी बार हमको सम अप करना होता है, एवरेज निकालना होता है उस डेटा का, तब जाके हम उसको आगे स्टडी कर सकते हैं डेटा को. राइट? हमारे जो भी इकोनॉमी के लिए रेशियोज चाहिए हमको, लिटरेसी रेशियो, इकोनॉमी, पॉवर्टी, लिटरेसी, इलिटरेसी, वॉट एवर रेशियोज वी वांट, वो सारी चीजों का एक एवरेज निकलता है. राइट? सो वॉट एवर आगे हमको कुछ भी कैलकुलेशंस करने हैं या कुछ भी हमको आगे मैथमेटिकल बेस्ड कुछ भी हमको ट्रीटमेंट्स करने, उसके लिए हमको मीन होना बहुत जरूरी है. यस, नेक्स्ट. It is affected by sampling fluctuations, hence it is more stable. यस, यस महक. मैम ये सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशंस की वजह से बहुत अफेक्ट करता है और ये बहुत स्टेबल है. यस,
इट इज अफेक्टेड डेफिनेटली, एंड आई थिंक इट शुड बी देयर कि अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो हमारे कैलकुलेशन में क्योंकि फ्लक्चुएशंस आने चाहिए, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ डेटास को अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं, सो देयर शुड बी अ चेंज ऑब्जर्व्ड in our calculation, in our mathematical treatment, right? So I think mean, that's why, is the most stable and most used calculation. Fine. Okay, thank you Yash and Mehak. Please turn on your video, Yash. Moving forward, we will see some of the demerits. Yes, Simran will read and Yashvi will explain. Demerits. It cannot be determined by inspection. Yes. Yes, Yashvi. मैम समझ ही नहीं आ रहा है. Okay. It cannot be determined by inspection. मतलब inspection means what? कोई बताएगा inspection means what? Survey. Not actually. Inspection. मैम testing something. How? Testing something, but how? Okay. Inspection means जब हम लोग ऊपर से सारी चीजों को देखते हैं. We don't go deep into it. इंस्पेक्शन से आपको इंस्पेक्टर का नाम याद है. इंस्पेक्टर क्या करता है? देखता है और उसको पता चलता है. वो अंदर चेक करने, इंस्पेक्टर अंदर चेक करने नहीं जाता है कि ये क्रिमिनल है या नहीं. वो दूसरे लॉयर्स और क्रिमिनल लॉयर्स और सीबीआई, आरबीआई, मतलब अलग अलग फिर वो वर्क डिवाइड होता है. इंस्पेक्टर क्या करता है? वो इंस्पेक्ट करता है. आई बात समझ? इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्ट करता है. उसको बाहर से जो दिखता है वो समझता है. समझ में आई? इसी तरह से मीन जो है वो इंस्पेक्शन करने से हमको नहीं पता चल सकेगा. वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी वैल्यू. हमको उसके लिए डीप कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, तब हमको मीन समझ आएगा, तब हमारे लिए मीन यूजफुल होगा. वाइल इंस्पेक्टिंग वी कांट एज्यूम आवर mean. We cannot determine our mean by inspection. Clear? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Next, Yes. Simran. Arithmetic mean cannot be used if we are dealing with qualitative characteristics which cannot be measured qualitatively, like cars, Quantitatively. fusion, sex. Yes. Quantitatively. Yes. Yashvi. मैम अर्थमेटिक मीन जो होता है वो किसी के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन नहीं कर पाता है. और मतलब क्वांटिटेटिवली जो उस कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करना होता है वो नहीं कर पाता है. Yes. अरिथमेटिक मीन जो है वो सिर्फ हमको क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. इट ओनली हेल्प्स टू डील विथ क्वालिटी. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी. Yash, what is the difference between quality and quantity? Quality. Yes. Quantity means number of units, and Yes. quality means the हेलो मैम. Yes, Hardik. मैम क्वालिटी मीन्स मैम जैसे कोई प्रोडक्ट है तो मैम उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ऐसे तो Okay. टेस्ट में या अलग Okay. चीजों से. और Yes. क्वांटिटी मीन्स उसके नंबर ऑफ क्वांटिटीज. Yes. Quantity means कितना and quality means कैसा. Simple word याद रखने का. Quantity means कितना. That means it is measured in numbers. And quality means कैसा. Right? जो कि numbers में हम measure नहीं कर सकते. Right? Quality
is never measured in numbers and quantity is measured in numbers. So here arithmetic mean जो है that cannot be used in qualitative characteristics. आज जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक क्लास का, वही एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. जैसे कि आई मस्ट से दैट आप लोगों के परसेंटेज कैलकुलेट किए थे, उसका एवरेज निकाला, ठीक है. अब इस 20 स्टूडेंट्स के क्लास में देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. जैसे कि आप लोगों ने परसेंटेज के कंसिडरेशन में हमने एवरेज निकाला 75%, तो अब उसमें कितने ऐसे भी होंगे जिनको 80-85 आए होंगे, 70-75 आए होंगे, और कितने ऐसे भी होंगे जिनको 60-50-40 भी आए होंगे, राइट. तो हम जब उसका मीन निकालेंगे, जब उसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज या मीन हमको ये नहीं बताएगा कि कितने 40 वाले थे, कितने 50 वाले थे, या कितने 90 वाले थे, कितने 80 वाले थे. वो सिर्फ एक नंबर देगा कि एवरेज परसेंटेज है 75%. आई बात समझ. हमको वो ये नहीं बताएगा कि कितने स्टूडेंट्स के कैसे परसेंटेजेस थे, राइट. सो दैट एवरेज विल ओनली मेजर क्वांटिटी के इतना बच्चों का इतना एवरेज निकला है, बट उस बच्चों में कौन से बच्चे की कौन से ग्रेड की कौन सी क्वालिटी है वो नहीं पता चलता, राइट. सो मीन जो है वो हमको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स में काम आता है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स में नहीं काम आता है, राइट. हमने कैलकुलेशन किया, क्या उस कैलकुलेशन से हमको ये पता चलेगा कितने गर्ल्स थे, कितने बॉयज थे? नो, राइट. कौन कितनी कास्ट का है, कौन ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस कास्ट के हैं, हमको एवरेज में ये पता चलेगा किसी भी तरह के एवरेज में? नो. वोटिंग्स होती हैं, वोटिंग में जब एवरेज निकलते हैं तो क्या उसमें इतना पता चलता है इतने हिंदुओं ने वोट किया, इतने मुस्लिम ने, इतने सिख, इतने ईसाई, ऐसा डेटा निकलता है? नो. ओनली व्हाट वी गेट इज एन एवरेज नंबर. Right, what we get is average number, that is it is measured always in quantitative, not in qualitative, right. Next you can Arithmetic mean cannot be obtained if a single observation is missing or lost. yes Yashvi. Yes, ma'am. If any single observation is missing, मतलब कभी भी अगर एक भी ऑपरेशन अगर मिस होगी या गुम हो गई होगी तो उसमें अर्थमेटिक मीन परफेक्ट नहीं आएगा. Yes, we can calculate that. और अगर हम कैलकुलेट कर भी लेते तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट से, हम क्लास वाला ये एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है उसमें. इफ एनी स्टूडेंट इज मिसिंग, अगर वो 19 हो गया बाय वॉट एवर रीजन्स, अगर एक भी बच्चे का डेटा मिसिंग है, राइट, तो वो कैलकुलेशन मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं होगा जब तक मेरे पास वो कंप्लीट 20 नंबर ना आ जाए. एंड इफ अवॉइडिंग एनी सिचुएशन, इफ आई एम डूइंग दैट, मेरा रिजल्ट जो है एवरेज जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग निकलेगा, राइट. डू यू अग्री? डू यू अंडरस्टैंड? अगर एक भी डेटा, अगर एक भी नंबर ऑफ यूनिट या एक भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट mean. And if we are calculating mean instead of that, then it is not accurate, right? Okay, yes, next Simran. Arithmetic mean is very much affected by extreme values. Yes. ये उसका अकाउंट है. Yes, Yashvi.
मैम एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब अगर कोई भी मतलब बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसके कारण अर्थमेटिक मीन में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यस, इट इज नॉट ऑलवेज बड़ी वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब अगर वैल्यूज में कुछ भी चेंज आता है तो उसकी वजह से अरिथमेटिक मीन को बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, right? It is very much affected whether there is a small or a big change in values. अगर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा भी चेंज होगा तो हमारे अरिथमेटिक मीन में बहुत ड्रास्टिक अफेक्ट आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग मीन, जब हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमारा मीन को डिफरेंशिएट करना, सेग्रीगेट करना इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। सी, very first thing, mean is divided into two types of data, right? One is ungrouped and one is grouped. Grouped data and ungrouped data. If you remember, grouped data जिसमें हमको फ्रीक्वेंसी इंक्लूड करी हुई होती है, xi, fi, two columns are given. Two columns are given here, two datas are given here, जिन दोनों को हमको कंसिडर करना है। अब xi हमको नंबर, जैसे आई मस्ट से 20 स्टूडेंट्स, सो 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस xi प्रेजेंट किया जाएगा। अब वो 20 स्टूडेंट्स के सामने उनके क्या परसेंटेजेस थे वो सीक्वेंसली मेंशन किए जाएंगे। दैट विल बी अवर fi, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी fi इंटू xi, and total of that is known as sigma fi xi. आई बात समझ? यस। एंड इफ इट इज अनग्रुप्ड डेटा तो हमको fi नहीं दिया होता है, ओनली xi इज गिवन टू अस। उस टाइम पे जो हमने फॉर्मूला पहले देखी आगे वही फॉर्मूला, सिग्मा xi अपॉन n, एंड डोंट फॉरगेट दिस इज सिग्मा एंड दिस सिग्मा मीन्स टोटल। ये सिग्मा है और ये सिग्मा का मतलब होता है टोटल, टोटल ऑफ xi, here total of fi into xi upon n, here you can see this, right? यहाँ पे आप देख सकते हो मीन जो प्रेजेंट किया है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल divided by number of observations, whatever total number of observations we have, उससे जब हम डिवाइड करेंगे उस चीज को तो हमको जो वैल्यू मिलेगी that will be our mean। आपको एग्जाम्पल दिया है, what kind of data is this, यशवी? मैम यस, xi दिया हुआ है। तो ये ग्रुप्ड हुआ कि अनग्रुप्ड हुआ? अनग्रुप। Yes, it is ungrouped data because only xi is given to us। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको काय का कैलकुलेशन दिया है, बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न, उसका एवरेज निकालना है हमको। ठीक है, सी ये आपको अलग अलग कंसिडरेशंस दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? ये 10 क्या हो जाएगा हमारा? 10 क्या N. हो जाएगा? n। यस, N. N. तो हम ये n की जगह पे क्या लिखेंगे? 10। और हमारा सिग्मा xi क्या हो जाएगा? इन सारी चीजों का टोटल, इन सबको ऐड करो, सम करो, जो भी आपका टोटल आएगा उसको डिवाइड बाय n, दैट इज 10, विल गिव यू x बार, दैट इज मीन 4.12 kg। मतलब एवरेज अगर निकालो तो बर्थ वेट जो है न्यू बॉर्न्स का वो 4 kg के आसपास होता है। आई बात समझ? इस तरह से हम इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से हम इस डेटा को कंसिडर कर सेम वे। व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज दिस, महक?
महक ये कैसा डेटा है बेटा? See, it is written here that a survey, yes, it is a group data, very good. ये सर्वे जो है 100 फैमिलीज का दिया हुआ है, each having 5 children. ठीक है, नंबर ऑफ 100 फैमिलीज each having 5 children. हर 100 फैमिली का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हर किसी को 5 बच्चे हैं. उसमें से मेल चिल्ड्रन जो है वो 0 है. नंबर ऑफ फैमिलीज 9, 24 फैमिलीज में 1, 35 2. सो इट इज लाइक ये हमको XI दिया है और FI दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से वो प्रेजेंट हुआ है. यस, फाइंड द मीन ऑफ मेल चिल्ड्रन. यहाँ पे हमको मेल चिल्ड्रन का मीन फाइंड करना है, राइट? यहाँ पे देखो 100 फैमिलीज, मतलब हमको टोटल बता दिया इनडायरेक्टली n. इसको क्रॉस चेक कैसे करने का? आपको क्या करने का, ये पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालो, आपको उसका टोटल मिलेगा 100. और इसकी हिंट, इसका आइडिया हमको इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया दैट देयर आर सर्वे ऑफ 100 फैमिलीज, राइट? समझ आया बेटा? इस तरह से आप लोग आपका डेटा, आपका वैल्यू क्रॉस चेक करके भी आगे बढ़ सकते हो. 100 फैमिलीज मतलब ये FI को हम टोटल करेंगे तो वो 100 आएगा. एंड व्हेन it is grouped data, when it is grouped data, always the sum of frequency, that means this n is considered in the formula. अनग्रुप्ड डेटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसीलिए हम लोग XI वाला कॉलम है उसका जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको कंसिडर करते हैं n. बट फ्रीक्वेंसी में जो इसका टोटल आएगा प्लस करके वो होगा हमारा n. आई बात समझ? नाउ व्हाट वाज अवर फॉर्मूला? सिग्मा FI XI इंटू सिग्मा FI इंटू XI अपॉन n. सो अब हम क्या करेंगे, ये XI और FI इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. यस, चलो फास्ट फास्ट बताते जाना. 0 इंटू 9 0, 0. 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 35 70, 3 इंटू 24 72, 2, 4 6 जा 24, 24, 5 2 जा 10, 10. अब क्या करेंगे हम, ये XI FI मिल गया हमको, अब इसका टोटल निकालेंगे हम. दिस वन, इसका हम टोटल निकालेंगे सिग्मा FI इंटू XI. सो दैट इज 200 डिवाइड बाय n, 100, दैट इज 2. सो हमारा मीन क्या हो गया? 2. सो बाय दिस डेटा व्हाट वी कंसिडर, व्हाट वी कम टू नो इज के अगर 100 फैमिलीज का ईच हैविंग 5 चिल्ड्रन तो नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन का एवरेज होगा 2, के हर फैमिली के पास 2 मेल चिल्ड्रन है. Right? We can study this data into this way, that number of male children, that means mean of male children is 2. On an average हर फैमिली में 2 लड़के होंगे. Clear? Right?